is sending the message in the group. आपको लाइव जाना पड़ेगा ना? Have you gone live? Yes, sir. It's live. It's live. Okay. We have very good morning to everyone present. We are to be completing 50 weeks of learning, and I would like to hear some of your thoughts and reflections, your takeaways. Please go ahead. What are your takeaways from the session? And then I have prepared a presentation of going through the journey of over these 50 weeks. So we'll enjoy that presentation. And then Abhinav ji, who is a speaker with us today, he will be taking us towards financial Aatmanirbhar Bharat, and he will guide us on wealth creation. So he's a entrepreneur, a financial guy. And he's also an investor. So we'll be learning from his wisdom of finance. So any of you giving feedback, your takeaways from these sessions over the last 50 weeks? How many of you are regular attenders? You can answer in the chat box. Okay, let's, yeah. Great, Kruti. Vishalji also. Thank you so much. I see many common names. Yeah. Similar. And Pinaki ji is also a regular attender. Even Harikesh Navalji, Alok Mishra ji, Naren ji. So I hope all are attending most of the sessions. So let me take you to the presentation then, to share our journey over these last 50 weeks. So this was the start of our journey, the first flyer, and we started on 4th of February 2023. So as sir rightly says, everything is created twice, once in the mind, then in reality, and jo dikhta hai wo bikta hai. And one of my quote is, your degree is also your passport. You still need a skill named ticket to travel on your life's growth path. And Hirani sir, who focuses on life and vitality, he says life is a simple riddle, be complicated. Life is simple, but being simple is difficult. And life is a choice you make every moment.
So this was the start of our journey from 4th of February 2023. And we'll go through some of the slides and presentations and highlights of our sessions. So we have with us we started speakers from sessions with Alok Sethi sir, and then Vikas Chatraji joined us. And initial 10 sessions were taken by 3 of us. Then Arun Bafna spoke about startups, and Abhijit Sansgiri sir, he spoke about thought leadership over LinkedIn, and Alok Sethi sir once again with dynamic dashboard creation, and Sameer Naraji on power of subconscious mind. So these were some of the highlights. Then Pankaj Deshpande, he talked about optimizing tally, and N. Shama Bhatt, he talked about choosing your inner battles. Then we have booklet guy Amrut Deshmukh. So he talked about crowded cafes and empty libraries. P. Krishnavadi, she talked about finance for heroes, special session for our women members. Then Abhinav ji, who will be talking today, he earlier talked about stock market for beginners. Today he'll be taking us even deeper. As his session was too much demanded, so we brought him again. And Pinaki ji was there for goal setting using NLP techniques. Alok ji on the art of public speaking, and Sameer Naraji for ikigai, no life, no ikigai, and no life. So these are some of the picks. And I took a session on A to Z of book writing and publication, brand building through your book by Akash Bhabarji. And Rajiv Niranjan Shah, he took on some money management things. He has designed a money game that is very popular. So he took us to that journey. Then Usha ma'am was there for episode 29, and her session was also very much liked by the audience, breaking your invisible barriers. And Somita Seth took us to emotional intelligence. The art of storytelling was also liked by our audience by Anupriya Chaudhary. Then we have Soumya Subhana. Her session was also too much liked by the audience on effective ways of personal branding on internet, on LinkedIn. And Shravanti came with the session on embrace your inner power. And we have Justice Roshan Dalvi ma'am, who took us a session on business principles and ethics for all. And Deepak Chaudhary ji took us to unleashing the fire within. These are some of the highlights of the sessions that were the great takeaways from the session. And then some of your wonderful comments. There was a great sentence by Roshan Dalvi ma'am, if it is to be, it is up to me. Then we started the YouTube course with Alok ji. Harish Mehta sir took us to reset our mindset. Hina Srivastava took us to boosting your influence with secrets of creative writing. Nilesh Kataria took us to personal branding via LinkedIn. And Sunny Nagpal ji on the day of Diwali, he took us to discovering of the genius in your child. These are some of the highlights.
And Deepak Khimani sir talked about compounding. Neepa Chokshi, she talked about conflict resolution and adaptability. Then Pavan sir was there. He talked about how to read 100 books in 2024. The only thing that compounds faster than interest is learning. This was the quote. I loved it. And that's quite true as well. The problems of the world cannot be solved by the same type of thinking that created them. The famous quote by Albert Einstein. And then we have with us ISRO scientist, Dr. Alok Srivastav, who took us to the journey to the moon and lessons from there. The sky is no longer the limit for pride. And then we have Kunal Devmani, who talked about millennial networking mastery. Seema Ranawari, who talked about your relationship with money. We have with us, I'm just forgetting the name. He talked about procrastination, busting the myth, and gaining autonomy. And Parinita Adukia, she talked about Lalit personal Khurana. branding on, yeah, Lalit Khurana ji. Yeah, and CA Parinita Adukia, she talked about personal and ethical branding on LinkedIn. And today we have with us Abhinav Kumar once again. So he'll be talking about financial Aatmanirbhar Bharat. We welcome you, Abhinav ji. And these are some of the highlights. And we started a podcast as well on YouTube Music, Skilling on Saturdays. So these are some of the highlights of our journey over the last 50 weeks. Thank you for being a part of our journey and making SOS a great platform. I thank you, all of you, for joining us every morning, 7 a.m. Thank you so much. And I would also like to hear any of your words that you want to share. Welcome, Abhinavji. You can go ahead. Thank you, Shivani ji. And first of all, thank you, everyone. Thank you, Dr. Raj, Kumar ji, Hari ji, and Shivani ji for giving me this opportunity on the 50th edition of SOS, which is Skilling on Saturday. Hello, guys. My name is Abhinav, a young entrepreneur running my 4 different businesses. Investor from last 25 years and a financial coach. Yes, I'm also writing a book with the help of Shivani ji. She has given very good thoughts how to write a book. So I'm writing 2 books, not a single. So I'm author soon. Okay, so that's the power of this Skilling on Saturday, that we learn from each other and adapt those things into our life and move ahead. All right. So guys, I would like to have an active participants. Okay, I do not want dead people will be just listening to it. It will be like a live session where we interact more. So I request all of you to open your cameras if you can. If not, at least your mic, so we can interact and take it further. Shivani ji, I required the admin rights to share the file. Yeah, I'm allowing you. Yeah, you can. All right, thank you. All right, thank you very much. So guys, this session will be in English, which is like English and Hindi both. तो फटाफट से एक बारी देख
लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी लग रही होगी, तो अगर मैं बीच में थोड़ा सा अपने आप को हाथ रब करूं या कुछ करूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, so let's start, and if you can open cameras, guys, so it will be easier for me to recognize and interact with you. Right, we have a lot of participants today, 23. Sethi ji, Mishra ji, Vishal Gupta ji, Pradeep ji, Prashant ji. If you can open your at least mics, that will be wonderful. So guys, today's session is about financial Aatmanirbhar Bharat. Okay. Shivani ji, is my screen is visible? Just give me a Yeah, thumbs up. visible. Yes, yes. Yes. Okay, thank you. So let me just take it further from here. Okay. तो पहली स्लाइड ही घूम रही थी, यानी कि फाइनेंशियल आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे टर्न हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं गाइस। क्योंकि आज के टाइम पे फाइनेंशियल, अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करूं तो ऐसे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास एजुकेशन तो है, बट क्या वो फाइनेंशियल लिटरेसी है? पता नहीं। हमारे पास डिग्रीज बहुत सारी हैं, बट क्या हम फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हैं? पता नहीं, राइट? तो इसीलिए आई chosen this topic so I can help you with this. Okay, so let me just take you further very quickly. As I told you that I'm a young entrepreneur, an investor, a keynote speaker to various forums, a financial professional and upcoming author. So that's about it. Today's learning will be a lot of things that we'll be doing, but let's start from the very basics of finance, which is what? Savings, right? So we have a lot of people here. So let me ask you very quickly that what do you understand by savings? So let me just pick any one of you will like to say, like, what is savings for you? आप क्या समझते हैं savings से? कोई भी? Keeping a portion Narendra of ji, your earnings. sorry. Keeping a portion of your earnings every month or on a yearly basis. Correct. Correct. Before spending, some portion of whatever you are earning should be saved. Should be? Saved. Should be saved. Wonderful. Wonderful. कोई और बताना चाहेगा? Money for future. Money for future. Okay, ये किसने बोला है? नाम बताएंगे अपना? Okay. I'd like to ask somebody from like housewife, students, or if we have somebody from that section. Money for future. Okay, good. कोई और? नहीं? चलिए. Let's see कि होता क्या है actual में. Right? Money that you put aside from your income is called savings. बहुत ही simple term है. बहुत ही simple. पैसा जो अपनी इनकम से आप उठा के साइड में रख देते हो उसको हम सेविंग्स कहते हैं। और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं बहुत हाई लेवल पे नहीं जाने वाला हूँ, बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव दैट 80 to 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट अंडरस्टैंड फाइनेंस एट ऑल। हमारे फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप कैसे इमारत बना सकते हो उसके ऊपर? अगर हमारे पास बेसमेंट ही नहीं है तो कैसे बन सकती है इमारत? बन सकती है? नहीं बन सकती है, राइट? सो दैट्स द रीजन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ओके, एक जर्नल पर्सन के लिए सेविंग्स का मतलब क्या होता है? आपने बिल्कुल सही बोला। जर्नल बंदा जो होता है, जर्नल इंडियन है, वो सोचता है यार सेविंग्स मतलब कुछ ऐसा सा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कॉल्ड सेविंग्स, कि जो मैंने कमाया, जो मेरी सैलरी थी, जो मेरे बिजनेस से आया, उसमें से मैंने एक्सपेंसेस हटा दिया, जो बचा वो मेरे लिए सेविंग्स है। बट जैसे अभी इस ग्रुप में बोला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास डेफिनेशंस भी आई हैं, राइट? विच इज समथिंग, द करेक्ट फॉर्म विल बी समथिंग लाइक दिस: इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंसेस, द करेक्ट फॉर्म।
आज तक हम यही सुनते आए हैं, यार पैसा कमाओ, उसमें से खर्चा करो, और जो बच जाएगा वो सेविंग्स है, राइट? बट सेविंग्स अलग चीज है। इनकम में से सेविंग्स पहले करनी है, उसके बाद जो बचता उसमें से खर्चा होना चाहिए, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, विच इज इनकम, सेकंड इज सेविंग्स, थर्ड इज एक्सपेंसेस, राइट? तो इनकम सबको पता है कि हमारी क्या होती है, चाहे हमारी सैलरी से हो रही हो, एम्प्लॉयमेंट से हो रही हो, बिजनेस से हो रही हो, कहीं और से हो रही हो, रेंटल इनकम आ रही हो। सेविंग्स अभी अभी हमने सीखा, पैसे जो हम अपनी इनकम से साइड में रखते हैं उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। तो एक्सपेंस क्या है? Expense can be of 2 different types, which will be, first will be a good expense and second will be a bad expense, right? तो मैं आप लोगों से अब जानना चाहता हूं कि what do you understand by good expense and what do you understand by bad expense? कोई भी। The amount which is spent towards needs can be a good expense. The amount which is sometimes spent on a want, which we actually don't require, but we are spending out of emotions, out of something which we think that we should have this product. For example, a phone, a luxury phone or a luxury car, or maybe a spending on the restaurant or going out. That can be a bad expense, which we realize later on that खरीद तो लिया, कुछ ऑफर मिल रहा था इसलिए ले लिया, लेकिन जरूरत नहीं थी इसकी। थैंक यू सेठी जी। जी, थैंक यू। मुझे पता था कि ये सेठी जी की तरफ से ही आने वाला है ऐसा आंसर। कोई और, क्योंकि दिस इज एस्पेक्ट ऑफ अ सीए विद एक्सपीरियंस्ड वन, अ कोच, ओके? कोई और थैंक यू। जो बताना चाहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड एक्सपेंस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड एक्सपेंस? Unrequired expenses or bad expenses. Okay. And what do you mean by good expense then, sir? Which are which is day-to-day expenditure plus to live a standard life is a good expenses. Is a good expenses. Okay. और कोई? बहुत बढ़िया. Thank you. The one Expenses that on learning. generally, right, go ahead. Go ahead, Expenses sir. on learning is a good expense. Sorry, I didn't get that. Your voice just break down. Expenses on learning is a good expense. Okay. Okay. All right. And what do you mean by bad expense then? Anything unnecessary spending, that is a bad expense. And Tushar is saying essential need expense like expense on health, food, education, etc. are good expenses. All right. So different people have a different wordings on good expense and bad expense. Interest on EMI is a bad expense, Wonderful. and GST on that interest is even bad expense. Okay. Thank you. Thank you very much. तो मैं वही कह रहा था दोस्तों कि देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, जबकि ये बहुत ही बेसिक चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अच्छा एक्सपेंस और बुरा एक्सपेंस, राइट? तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल बहुत फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से कि अच्छा एक्सपेंस क्या होता है और बुरा एक्सपेंस क्या होता है. एनी एक्सपेंस which generate further income for you is a good expense. और ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं जो आगे फर्दर इनकम नहीं जनरेट कर रहा है, दैट्स अ बैड एक्सपेंस. नॉर्मल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंस. मैं कहीं थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी इमोशंस पे नहीं जा रहा हूं, फाइनेंस के हिसाब से जो है वो बता रहा हूं. तो उसके हिसाब से एनी इन्वेस्टमेंट दैट वी डू, राइट, इज अ गुड एक्सपेंस बिकॉज इट जनरेटिंग फर्दर इनकम. और कोई भी चीज जो हम खरीदें जो नहीं जनरेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटिंग ए होम थिएटर, बाइंग ए होम थिएटर, इट डज नॉट जनरेटिंग एन इनकम फॉर यू, दैट्स अ bad expense, right? But if you are into the selling of home theaters, might be. If you are into like if you're making some money out of the home theater, then it's a good expense. So now give me an example of a product which can be a good expense also and a bad expense also. Same as GST, it can be good for the government and bad for us. No,
it has to be like शिवानी जी, एक ऐसा एक्सपेंस हमें ढूंढना है जो कि हमारे लिए ही गुड है और हमारे लिए ही बैड है. नॉट फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भूल जाइए. गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हमें नहीं चाहिए. हमें तो अपने बारे में सोचना है पहले, राइट? आत्मनिर्भर भारत कैसे Credit बनेगा? जब card. हम आत्मनिर्भर बनेंगे, Definitely. राइट? तो हमें कुछ Sir, ऐसा can it सोचना be है. credit card? Okay, if you can elaborate on that, कि how EMIs right, also. how it is a good expense then, according to a definition, that it generate money for you. No, it doesn't generate money, but it delays payment. Okay, if it does not generate money, then it's not. But yes, in a way, you can say that. If you put that specific amount in, if you use that specific amount to generate some money for that specific period, for say 40, 45 days, in that case only, it will be a good expense. So in Definitely. those terms, I'm asking you to अभिनव जी, think. गायत्री जी ने लिखा कार. Car. Okay, very good. How a Junk car food. can be a good expense and a bad expense? Gayatri ji, if you can just open your camera and open your mic and say, or if you can just type in. Yes, car can be, but I want to understand from your point of view. Yeah, I thought having a car is a luxury, so if we invested on it, but it is never going to generate money. It is like it needs all that caring and everything. But the experience wise, and when we go for long drives, it's best thing that we can do compared with that of flights or trains. With a lot of we have to carry our luggages again, take taxis and rest of the things. When we compared that, long drive was less expensive on cars than other commutes. So your answer was correct, but the explanation was is going into some more of emotional things where you say luxury, long drives, feeling better. I'm going along with my family and stuff. According to the definition, car was a very good example, right? If you buy a car for your own use, that does not generate an further income. So that becomes a bad expense. But if you buy a car and rent it out to Ola and Uber, then it's starting generating money. So that becomes a good expense. Buying a house for yourself, where you're living in, that's become a bad expense. But buying a house and rent it out, okay, that's become a good expense. Buying a laptop for personal use is a bad expense. Buying a laptop to generating further income, to making your business grow, that becomes a good expense. Buying an iPhone for personal use, bad expense. Buying an iPhone to increase the business is a good expense. I request if you can mute that person, please, Shivani ji, or can I do that? Okay, thank you. So what you have to do, guys, you have to increase your good expenses and decrease the bad expenses to become a wealthy person, right? बहुत सिंपल सी बात है, बट हम लोग इमोशंस में चले जाते हैं. इमोशंस में नहीं जाना है, गाइस. अगर आपको फाइनेंशियल बात करनी है तो स्टिक टू दैट फाइनेंशियल थिंग, करेक्ट? इमोशंस को थोड़ा सा भी हम साइड में रखेंगे, पर्सनल लाइफ को साइड में रखेंगे. सी, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज आर वेरी बैड थिंग्स, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इस फील्ड में भी, जो कि हमें बचपन से सिखाई नहीं जाती है, करेक्ट? सीएस होते हैं, वो पढ़ते जरूर हैं, बट क्या सिखाई जाती है बचपन से? आई डाउट. प्रोफेशनल नॉलेज दी जाती है, बट अगर हम ये चीज अपने बच्चों के अंदर डाल दें, सो दैट माइट गिव अ बेटर इम्पैक्ट टू द एंटायर सोसाइटी, राइट? लेट्स मूव फर्दर देन, गाइस. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अभिनव, पिनाकी ने हैंड रेज किया है. सॉरी हरी जी, पिनाकी जी ने हैंड रेज किया है. क्या किया है? अच्छा, पिनाकी हाँ जी. बोला तो पिनाकी यार. Yeah, I have raised my hand to say that learning for earning is a good expense. But if you're not using that learning for earning, then it's a bad expense. Correct. Very correct. Very true.
करेक्ट। आलोक सेठी जी, बिल्कुल आलोक सेठी जी ने सही बोला है। एग्जाम्पल, जिम सब्सक्रिप्शन कैन रिड्यूस योर मेडिकल एक्सपेंस टू सेव इट। वंडरफुल, वंडरफुल। बट क्या होता है सर, लोग चल जाते नहीं है ना लेने के बाद, तो बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। सर मेडिकल एक्सपेंस तो कहते हैं, ये जिम एक्सपेंस तो सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि लोग जनवरी में इतने ज्यादा लोग एंथी होते हैं कि नहीं, आई विल रिड्यूस इट, आई विल डू दिस, मैं करके रहूंगा। और पता चलता 15 दिन के बाद उनसे पूछो जाना है, नहीं यार आज ना ठंड थोड़ी ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर से, तो यहाँ पे ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ती है इस टाइम। मैंने भी जी चार चार जी चीजें पहन रखी हैं, राइट। सर, तो वो लोरी आते उठता आते ही सबको नहीं है। लड्डू याद आ जाते हैं। बिल्कुल लोरी सर, के लड्डू याद आ जाते हैं, गाजर का हलवा और याद एक आ बात आलोक जाता जी, आलोक जी और जी एक बात, जी जिम में समझो कैपेसिटी 500 की, वो लोग 1000 आदमी लेते हैं कम से कम, और मोर देन दैट, बिल्कुल। इनको मालूम है मार्केट ड्रॉप हो जाएंगे। जी जी सर। वो जानबूझ के उस टाइम पे ऐसा ऑफर निकालते हैं जिम वाले, सब्सक्रिप्शन वाले। सी दैट्स देयर बिजनेस, दैट्स देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि आप यू एनरोल एंड देन यू फॉरगेट। They said 95% of people who paying subscription in January will never come up to you after a month. That's the stats. राइट। तो यही हमें चीजें समझनी है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्या कोई डिफरेंस है ये या नहीं है? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हम बात कर रहे हैं, बट लोगों को यहाँ पे भी बहुत सारे मिथ आपको देखने के मिलेंगे और बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी। तो एनीवन हु लाइक टू से कि डिफरेंस है या नहीं है, और है तो क्या है? एनीवन? Investment gives you the return, savings does not. Okay, so savings does not and investment does. First definition. Okay, very good. Anyone else? Savings is only a support. Saving is Investment not is an opportunity for growth. saving is not for your support. That's what you're saying? Savings is only a support. Only a support. Investment is an opportunity for financial growth. Okay, wonderful, wonderful. और कोई? Saving is a dead investment if it is not generating any income. All right. Okay. Investment is compounding in nature. It always Good. multiplies. Wonderful. Savings. बहुत बढ़िया। मतलब कि हमारे पास ऐसी ऑडियंस है जो कि समझती है कि व्हाट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो फटाफट से इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। एनी प्रोडक्ट और एसेट परचेज इन ऑर्डर टू जनरेट फर्दर इनकम इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीदते हो टू जनरेट फर्दर इनकम इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। और सेविंग्स क्या होती है? जो हमने पैसा साइड में रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि शिवानी जी की जो सैलरी है इट्स 2 लाख रुपीज, ओके, and out of that 2 lakh rupees Shivani ji is putting 40,000 rupees into savings। मतलब क्या हुआ शिवानी जी, समझाएंगी? आपने अगर 40,000 रुपए की सेविंग की है तो क्या किया है आपने? That I have saved 20% and then the rest is for spending. राइट। तो पहले हमने सेविंग की है कि पहले एक्सपेंस किया है? Savings first. पहले सेविंग्स फर्स्ट, राइट। तो देखिए जैसे शिवानी जी सी हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? 20%। उन्होंने बता दिया कि कितनी सेविंग कर रही हूं मैं, राइट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, करेक्ट। तो गाइस डिफरेंस है बहुत बड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग क्या होता है? सेविंग वो चीज होती है कि आपने अपना कुछ पैसा उठा के अपने लॉकर में रख दिया, वो सेविंग्स है, राइट। बट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज वही उस लॉकर में से जो 40,000 शिवानी जी ने रखा था, अपने वॉलेट में रखा था, उसमें से अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा है जो कि जनरेट कर रहा है फर्दर इनकम, दैट्स बिकम अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन लेके आते हैं कि नहीं नहीं, इट्स अ सेम थिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेविंग्स इज समथिंग डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट। सेविंग होता पैसे को खाली बचा के साइड में रखना, अपनी पॉकेट में रखना, वॉलेट में रखना, कहीं भी रखना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
उस पैसे को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना, ऐसी चीज में डालना जो कि आपको फर्दर इनकम जनरेट करके दे। यहाँ पे भी अलग अलग धारणाएं हैं, बहुत सारे मिथास टूटने वाले हैं आप लोगों के गाइस, ठीक है। और हमेशा मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन एसेट, नॉट इन करेंसी और कैश। व्हाट डू आई मीन बाय करेंसी और कैश? कि आपको अपना पैसा जो है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। मुझे कोई बता सकता है आजकल बैंक अकाउंट में, नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना और द इंटरेस्ट रेट दैट यू गेटिंग? 3.5%. 3.5 to 4%. थैंक यू 4%. 4%. ओके, कुछ बैंक में 6% भी है. कोई कोई बैंक में 6% भी है, बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ी टर्म होती है सर जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। कोई बता सकता है कि महंगाई की क्या दर चल रही है, इन्फ्लेशन रेट? कोई भी? वी हैव लॉट ऑफ सीएस हियर। 7 to 8%, between 7. 7 to 8%, ओके। नॉर्मल जो इन्फ्लेशन रेट है विच इज 6% प्लस एंड माइनस 2%, करेक्ट? तो जैसे मैंने 6% प्लस एंड माइनस 2, तो वो प्लस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो अगर मैं नॉर्मल लेके चलूं कि 6% महंगाई की दर है और मुझे 3.5-4% मिल रहा है बैंक में रखने में, तो क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है? शिवानी जी, आप तो सीए हैं। हाँ जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? श्योर, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको बैंक में 3.5-4% मिल रहा है और आपकी इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है, तो क्या आपका पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? It's reducing, of course. इट्स रिड्यूसिंग, राइट? क्योंकि अगर हम बैंक में लेट से कि 100 रुपीज रखते हैं और साल भर के बाद में वो 100 रुपया 104 रुपये हो जाता है, राइट? बट इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गई है, तो उसकी 104 रुपये की वैल्यू इज नॉट 104 रुपीज, राइट? इट हैज रिड्यूस टू दैट 94 रुपीज। और अगर उसे हम एडजस्ट कर दें तो 98 रुपीज, तो आपके 100 रुपये जो है वो 98 रुपीज रह गए हैं इफेक्टिवली। तो चाहे आप जितना मर्जी पैसा सेविंग्स बैंक में रख लीजिए, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। इट विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस। That's only reason there is a saying that no billionaire has made his billion while putting the money into the savings bank account. तो कहाँ पैसा रखना चाहिए देन? Always in asset. तो यहाँ पे हम दो चीजें सीख रहे हैं। वो क्या है कि ऐसी जगह पे हमें इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें पॉजिटिव रिटर्न मिले। पॉजिटिव रिटर्न मतलब ऐसी जगह जहां पे हमें इन्फ्लेशन से ऊपर मिले। इन्फ्लेशन से जहां भी हमें नीचे मिल रहा है, इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, राइट? एनीथिंग विच इज मोर देन 6%, वी गिव अ थम्स अप टू दैट इन्वेस्टमेंट। एनीथिंग विच इज लेस देन 6%, वी से thumbs down. Okay, क्योंकि every rich person or wealthy person, they always invest in asset like equities, land, gold, real estate stuff. That's a reason. जैसे अभी सेठी जी ने कहा था, the rich people do not work for money, they make money work for them. जबकि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? वो ईएमआई पे पैसा लेता है, पैसा भरता रहता है, राइट? और अमीर इंसान क्या करता है? उसी ईएमआई के पैसे को जो इन्वेस्ट जो किया हुआ उसको एंजॉय करता है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक और सेव, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट। लेट्स से देयर आर 2 पर्सन, पहले शिवानी जी हैं और दूसरे हरी जी हैं। शिवानी जी इज अर्निंग 5 लाख रुपीज बट ओनली सेविंग 40,000 रुपीज, जबकि हरी जी जो हैं वो खाली लाख रुपया कमा रहे हैं बट उसमें से 50,000 रुपीज सेव कर रहे हैं। सो व्हाट आई बिलीव दैट फ्यूचर विल बी मच मोर सिक्योर एज कंपेयर टू शिवानी जी। तो हमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है, सेव करके अपने पास नहीं दबाना है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी हमारे
लाला होते थे या बनिया होते थे, सॉरी मैं आई एम टेकिंग स्पेसिफिक कैटेगरी, गिविंग अ डिस्क्लोजर दैट आई डू नॉट वांट टू दैट। अच्छा, जो बिजनेसमैन होते थे वो पैसा अपना तिजोरी में रखते थे, तो पैसा तिजोरी में रख के कभी बढ़ने वाला नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी। अनटिल अनलेस यू इन्वेस्ट दैट, वो पैसा तिजोरी में रखे रखे उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, इन्फ्लेशन के रेट से वो नीचे जाता जा रहा है, राइट गाइस। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट विल ओनली हेल्प यू टू मेक यू अ फाइनेंशियल आत्मनिर्भर। क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में बोला जाता है कि अगर आप छोटा छोटा पैसा भी इन्वेस्ट करोगे, इट विल गिव यू अ वेरी बिग रिटर्न, एज वी हैव लर्न इन कंपाउंडिंग, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल गिव यू ह्यूज रिटर्न, विल गिव यू अ वेरी गुड फाइनेंशियल फ्यूचर। चलिए आगे चलते हैं इसको लेते हुए। आप सबसे एक क्वेश्चन है, कौन कौन आप में से वेल्दी या सुपर रिच होना चाहता है? आंसर कर सकते हैं हैंड रेज करके या मैसेज करके। कौन कौन वेल्दी और सुपर रिच बनना चाहता है? कोई भी? I hope Everybody. everyone. एवरीवन, राइट। आपको शान जी बोले, माइट भी सोचते होंगे अभिनव जी ये कैसा क्वेश्चन है, हर कोई बनना चाहता है, राइट। एवरीवन, सबने एक साथ बोला एवरीवन, करेक्ट। मी एवरीवन, राइट। बट हम बनना तो चाहते हैं, बट क्या हमें पता है कि हमारा जो पैसा है वो कैसे ग्रो कर रहा है? किस किस को पता है, या किस किस को पता है कि अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो उसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, कितना पैसा वो मुझे बना के दे रहा है? मेरे ख्याल से जो सीएज होंगे उनको भी पता होगा, बाकी नॉर्मल जो 80% जनता है इंडिया के अंदर उनको पता ही नहीं है। तो अगर बनना सबको है, पता है नहीं, तो कैसे होगा? ये तो वही बात होगी कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है बट क्लाइंबिंग आती नहीं है, तो कभी पहुंच पाऊंगा क्या मैं? हरी जी, मुझे मुंबई आना है बट मुझे रास्ता नहीं पता है, क्या पहुंच पाऊंगा मैं कभी मुंबई? नहीं, नेवर नेवर। नेवर। तो वेल्दी तो बनना है, सुपर रिच तो बनना है, बट ये पता ही नहीं है कि पैसा कैसे ग्रो हो रहा है। तो उसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी कि क्या हमें वो पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं सीए हैं उनको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बेसिक्स है, बट इवेंचुअली मेरा यही है कि आई वांट टू टेक इट फ्रॉम वेरी बेसिक, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जा सके पूरे इंडिया के अंदर। ओके, तो लेट्स सी एन वेरी नॉर्मल एग्जांपल कि कोई भी बंदा एक आपके पास आता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, एक बैंक के से, और बोलता है कि यू इन्वेस्ट जस्ट 50,000 रुपीज पर ईयर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, और हम आपको आपके बच्चे की या लड़की की या लड़के की शादी पे 31 लाख रुपीज देंगे। तो मुझे बताइए आप में से कौन कौन इस इन्वेस्टमेंट को लेना चाहेगा? क्या ये हमारे रूल के ऊपर आती है, थम्स अप वाले पे है या थम्स डाउन वाले पे है? कौन कौन इसे लेना चाहेगा और क्यों? गाइस, इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं। I would say yes first because अगर घर में कोई एक बंदा है जो who is earning money and I know that that money has to be saved and I'm not sure if I don't save that money तो आगे जाके मेरे पास रहेगा कि नहीं, without having understanding about inflation and rest of the things, then I'll consider it as a right thing so that राइट it थिंग, fix है मेरे लिए फ्यूचर में। तब तो ओके, उतना शायद चाहिए होगा even for a normal thing to celebrate. वंडरफुल Um, वंडरफul। if गायत्री जी both of क्या us करते have, हैं आप? sorry, क्या करते right हैं आप? now I joined as a lecturer in one of the colleges. Lecturer, Earlier I wasn't working. ओके, I was a homemaker for almost 4 years.
with my career. That's a, Yeah. a wonderful job and toughest job on the earth, on the planet Earth, actually. Thank you. Right? I love Okay. it. Anyone else wants to give an answer on that? कि करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? हाँ जी हिरानी जी. Anyone else? No? चलिए कोई बात नहीं. ठीक है. तो गायत्री जी ने कैसे सोचा है एज एन हाउसवाइफ, एज एन मदर और एज ए गृहिणी, क्या सोच रही है कि यार अगर वो पैसा मैं सेव नहीं करूंगी तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा. गायत्री जी, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. Yes, sir. ओके. तो आपने ये सोचा कि इसको हमें करना चाहिए, करेक्ट? Uh-huh. Yeah. तो एक नॉर्मल इंडियन, ये आपका प्रोस्पेक्ट क्या था, मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कैसे सोचा होगा. आपने सोचा होगा यार 50,000 रुपया साल का है, करेक्ट, फॉर 25 ईयर्स. हाँ. तो 25 साल में मैंने कितना पैसा दिया? 12,50,000 रुपीज. Right. और मुझे मिला कितना? 31 लाख रुपीज. हम्म. अच्छी डील है कि बुरी डील है, पहले तो ये बताइए आप. हमें तो लगता है अच्छा है. इतना हमें तो दिया तो लगता है इतना अच्छा. kind of. 12.5 लाख रुपए दिया, 31 लाख रुपए मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी डील है. नॉर्मल इंडियन ऐसे ही सोचता है. Right. उसको और कुछ देखना नहीं है, समझना नहीं है, करेक्ट? Yes. बहुत बढ़िया. बट अगर मैं आपको बोलूं कि गायत्री जी इसके अंदर हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है इट्स नॉट इवन 4%, तो अब बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने रूल के हिसाब से? अगर मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, then I'll not नहीं, even अभी हमने think क्या of सीखा था? something. अभी हमने क्या सीखा था पहले? Inflation 6.56. यस, 6% से ऊपर कुछ भी होगा तो हम उसको बोलेंगे यस. हाँ. तो उसके उस रूल के हिसाब से क्या कहता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? No. No. नहीं करना It's a नहीं bad. करना चाहिए. बिल्कुल हाँ. सही हरीश जी, थैंक यू. यानी कि हमने क्या सीख लिया कि 6% से ऊपर है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए. बट क्या हमें ये कैलकुलेशन पता है एक नॉर्मल इंसान को? आई No. डाउट. तो हमें अगर पता ही नहीं है तो हम कैसे एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं? हम तो खाली ये देख के ले लेंगे ये 12.5 मिल रहा है, 12.5 दिया 31 मिल रहा है. और अगर हम राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होने वाला है? क्या हम अपने गोल की तरफ बढ़ने वाले हैं? नहीं, हम तो वापस जा रहे हैं, जहां पे थे उससे भी नीचे जा रहे हैं. तो फाइनेंशियल आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे फिर? चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक और बंदा सेम इंस्टीट्यूट से, लेट्स से कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोई भी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपके पास आता है. गायत्री जी आपके लिए ही क्वेश्चन है. चलिए, अगर वो आपको बोलता है 4,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स एंड विल गिव यू 50 लाख रुपीज फॉर योर रिटायरमेंट. अब उसने आपका पहले तो आपके बच्चे की मैरिज कवर कर दी, अब आके उसने आपका रिटायरमेंट प्लान कर दिया. तो अब बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको? हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत we were searching and learning about all these things. तो मुझे लगता है again it depends on the return and the inflation and बहुत सारे इसका वो तो हमें पता ही नहीं conditions. है ना, हम हाँ. कैलकुलेट कर सकते हैं. जनरल इंसान तो कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है. तो आप बताइए एज एन हाउसवाइफ या एज एन लेक्चरर टू, आप क्या सोचेंगी? अभी अभी आपके साथ तो धोखा हो गया. इट इज अट्रैक्टिव कि 50 लाख साथ में आएगा. बिल्कुल. हाउ मच वी डोंट नो. बिल्कुल हरी जी, अभी अभी आपको अच्छा मौका मिला. बट अभी हुआ क्या, इससे पहले आपका अभी अभी आपने चाय पी थी, वो इतनी गर्म थी कि आपका मुंह सड़ चुका है. मैं थोड़ा पंजाबी हूँ तो थोड़ी सी वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, राइट? अभी अभी आपने देखा था कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बट यार वो तो मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है. तो अब उसके बाद ये बंदा आ गया. अब बताइए गायत्री जी क्या करने वाली हैं? I would firstly consider चलो ले लेते हैं. चलो ले लेते हैं, बहुत बढ़िया. बट हमने क्या ये जो डिसीजन लिया है कैलकुलेशन के बेस पे लिया कि इमोशनल बेस पे लिया है? इमोशनल. इमोशनल बेस पे लिया, Definitely because of retirement. वो जो बिकॉज ऑफ डाल रहे हैं. रिटायरमेंट, राइट? हमें पता नहीं है कि सही है कि गलत है, बस हम इमोशनल बेस पे ले रहे हैं कि अच्छी अमाउंट बन रही है. 4,000 रुपये महीना, मतलब कि कैलकुलेशन समझाता हूँ, इंडियन कैसे सोचेगा
48,000 रुपीज पर ईयर, और 30 साल में कितने हो गए? 14,80,000 रुपीज, और मिल कितना रहा? 50 लाख रुपए। यार बहुत अच्छा है, ले लेना चाहिए। बट और कैलकुलेशन पता है अमरनाथ जी, क्या? और एक सोच आती है कि 4,000 देना ना दे सकते हैं अपन, हाँ, बाद में साथ में मिलेगा। बहुत छोटा अमाउंट है तो दे सकते हैं, राइट? हाँ, तो वो भी एक बट इमोशन आता इमोशनली वी हैव टेकन दिस, नॉट कैलकुलेटिव। फाइनेंशियली Yes. नहीं रीजन लिया, इमोशनल रीजन लिया हमने ये, राइट? सही बट बात अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका जो रिटर्न है इज मोर देन 6%, तो क्या हो जाएगा? क्या गुड हमारा डिसीजन इन्वेस्टमेंट। लेने में फास्ट हो जाएगा और यस, फाइनेंशियली सही हो जाएगा? यस, एब्सोल्यूट। राइट? तो एक में हम हो गए गलत, एक में हो गए सही। हमने 2 इन्वेस्टमेंट किया, एक में गलत हो गए, नीचे चले गए, एक में ऊपर आ गए। तब भी क्या हम टॉप पे पहुंचने वाले, वेल्दी बनने वाले, सुपर रिच बनने वाले? नो। नहीं, No. क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वी मूव्ड वन स्टेप अहेड, देन वी केम बैक, वी स्टिल स्टैंडिंग एट द पॉइंट जीरो। तो वेल्दी कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? क्योंकि हमें पता तो है ही नहीं कैलकुलेशंस। चलिए, तो गायत्री जी आपसे ही पूछ लेते हैं, क्या आप सीखना चाहेंगी कैलकुलेशंस? Yes, यस। sir. कैसे I will do कैलकुलेट it. किया जाता है? Sorry. और हाँ. अगर मैं आपको बोलूं कि ये कैलकुलेशन आप मात्र 1 मिनट के अंदर सीख सकती हैं, तो कैसा रहेगा? Oh, definitely. I would love to do that. मतलब डेफिनेटली, मैं एक एक राइट? दिन उसमें spend कर रही हूँ from different perspective, but there won't be a right way to learn unless there's one person to learn from basics to करेक्ट, everything. करेक्ट। चलिए, अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सी, यू हैव टू ओपन योर माइंड, बिकॉज माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। बंद पैराशूट किसी काम का नहीं है। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा आज की डेट। छोटी छोटी चीजें हम पकड़ेंगे, कोई बड़ी बात में नहीं जाऊंगा मैं, राइट? यहाँ पे बहुत सारे सीएस बैठे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, बट मैं छोटी छोटी बातों पे पकड़ता हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक दैट 80 to 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको देना चाहता हूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा ग्रो कर सकें। क्योंकि दैट्स द इंडिया, वो भारत है एक्चुअली, राइट? दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल आत्मनिर्भर भारत। चलिए, एक छोटा सा आपको दिमाग के ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है, दे आर 2 फ्रेंड्स कॉल्ड राम एंड श्याम। 2 दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, राम एंड श्याम, ठीक है? दोनों की एज आज की डेट में है 18। एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आने वाला है, इट माइट ओपन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। दोनों 18 साल के हैं। अच्छा हरी जी, मुझे बताइए, जो 18 साल का बच्चा होता है, कुछ सेविंग्स के बारे में सोचता है क्या, इन्वेस्टमेंट के बारे में? हार्डली, आई डाउट। हार्डली सोचते हैं। इफ इट इज वॉरेन बफेट तो अलग बात है। चलिए, तो ये दोनों दोस्त जो थे, दोनों ने सोचा लेट्स स्टार्ट इन्वेस्ट। वो हमारे जैसे किसी सेशन में आ गए, सीटी जी के सेशन में चले गए, लोक सर के सेशन में चले गए, शिवानी जी के सेशन में चले गए, उनको समझ में आया कि नहीं यार, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, अच्छी चीज होती है, राइट? एंड दिस डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ओनली 2,000 रुपीज, साल का मात्र 2,000 रुपए, क्योंकि स्टूडेंट है, कहाँ से पैसा लाएंगे, राइट? तो मात्र 2,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जिसमें से राम कर पाता है और श्याम नहीं कर पाता है। तो राम इन्वेस्ट करता है 2,000 रुपए। सबके लिए क्वेश्चन है, वेरी थोड़े ध्यान से सुनिएगा। 2,000 रुपए मात्र साल का और 7 साल तक करता है, 18 से 25 साल तक करता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, राम की भी और श्याम की भी। राम की वाइफ आती है और बोलती है, राम ये 2,000 रुपए इन्वेस्ट जो कर रहा है हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स स्टॉप दैट। बट राम उस पैसे को वहीं रख देता है। और शाम की वाइफ आती है, वो थोड़ी समझदार होती है, बोलती है, शाम तुम आज तक इन्वेस्ट ही नहीं किया है, लेट्स स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। तो राम इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। मात्र कितना? 2,000 रुपए, एज्यूमिंग दे आर गेटिंग 20% ऑफ रिटर्न। तो शाम मतलब ने राम ने इन्वेस्ट जो किया, 2,000 इन्वेस्ट किए 7 साल, उसने हाँ, निकाला नहीं, वही रखा इन्वेस्टमेंट। वहीं रख दिया, छोड़ दिया, भूल गया वो। Yes, उसने कहा यार okay. पड़े रहने दो, जो भी है पड़े रहने दो, भूल गया, वो अपनी गृहस्थी में लग गया।
और श्याम की वाइफ थोड़ी सी समझदार थी, उसने बोला नहीं नहीं इन्वेस्ट करते हैं, मात्र 2,000 रुपये करेंगे साल का। और वो इन्वेस्ट करते रहे हर साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द नेक्स्ट 40 years। तो जब 65 साल के दोनों हो गए, अगर वो बैंक में जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसके पास पैसा ज्यादा होगा, राम के पास में या श्याम के पास में? कौन बता सकता है? राम। क्वेश्चन आपने पूछा तो लगता है राम के पास ही होगा ज्यादा। ये राम के पास में होगा ज्यादा? राम। हरी जी बोल रहे ये हैं राम मैं के पास में। बोलता विदाउट थिंकिंग, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं मालूम मुझे, आपको कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। आईफोन कोई है वो पूछे 20% रिटर्न रियलिस्टिक है क्या? सर हम तो खाली एक यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं बता एग्जाम्पल रहा दे हूँ, अगर आप बिल्कुल पूछेंगे तो 20% रिटर्न भी आता है, रियलिस्टिक यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर हम आपने दिखाया चाहें मेरे तो। को, कैन बी मच मोर देन दैट। बिल्कुल। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए सर, ताकि वी कैन एड्रेस यू, क्योंकि आईफोन बोलना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नॉट इवन यू लाइक टू हियर दैट कि आपका नाम आईफोन है। तो अपना नाम अगर चेंज कर सकें, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा? कोई भी? शिवानी जी, सेठी जी, गायत्री जी, प्रदीप जी। अभिनव, अभिनव जी मैं रुका हुआ था बहुत टाइम से, क्योंकि हाँ आपको जी। सुनना अच्छा लग रहा है। मैं भी फाइनेंस पे सेशन देता हूँ ना, तो मुझे आज की क्लास ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, आई एम ऑल्सो गेटिंग अदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और काफी सारे अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है सर, हम भी सीखते हैं, हम भी आपके सेशंस में आके एक्सेल चैलेंज हमने भी लिया है। अरे और वाह। रिप्लाई नहीं करते हैं, बट बिल्कुल हम भी आपको सुनते हैं और बिल्कुल आपके सेशन से हम भी सीखते हैं। चलिए जी। तो ये आपने एग्जाम्पल अच्छा लिया है। इसमें दो फ्रेंड जो है राम और श्याम, 2000 वो इन्वेस्ट कर रहा है एवरी ईयर फॉर 7 years किया, और फिर शादी के बाद वो रुक गया, और दूसरे ने राइट, लेट स्टार्ट किया है। अब राइट, ये है कि किसके पास ज्यादा पैसा होगा, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? करेक्ट। तो देखिए, आई वुड लाइक टू ऐड 2 things हियर, आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे शायद। तो जो स्टार्टिंग में राम ने शुरू से स्टार्ट कर दिया है एट द एज ऑफ 18, और बाद में बंद करा है, तो उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा टाइम तक वो पैसा शुरू से रहा है उसके पास, तो हम्म। मे बी दैट मनी विल गो एट अ फास्टर रेट। दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, करेक्ट। लेकिन एक ने क्योंकि पहले स्टार्ट कर दिया है अर्लियर इन लाइफ, तो दैट मनी विल बी बिगर। और बाद वाले ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, अमाउंट सेम है, सब कुछ चीजें सेम है, लेकिन क्योंकि एज बढ़ने के बाद स्टार्ट किया है, वो जो पैसा ग्रो करेगा, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका होगा, महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, उसके खर्चे बढ़ चुके होंगे, और उसकी जो वैल्यू है, जो हम परचेसिंग पावर ऑफ मनी बोलते हैं, वो रिड्यूस हो चुकी होगी। तो उस कंटेक्स्ट में राम वुड हैव अर्न मोर मनी। दिस इज व्हाट आई माय और एक बात है सब्मिशन। आलोक जी, ये 7 साल जी। में उसने जमा किया, उसका जो आता होगा ना मंथली, वो 2000 से हम्म। जो आता है उससे ज्यादा आता होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो ये राइट। गेटिंग मोर एक्चुअली। तो राइट। सेठी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, बिकॉज ही इज इन सीए। ठीक है, बट एक नॉर्मल इंसान ऐसा सोचता है, आई डाउट। बिल्कुल हाँ, सही बोला सेठी जी आपने, जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल सही है। बट जी जी जी। एक नॉर्मल इंसान हमेशा यही सोचता है कि यार उसने 7 साल पैसा डाला एक बंदे ने, और उसके बाद छोड़ हम्म। दिया, हम्म। राइट, और कोई 40 साल तक पैसा डाल रहा है, तो उसके पास ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, राम के पास ज्यादा होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है कि अगर होगा तो कितना होगा? हम्म। अगर राम ने इन्वेस्ट किया और श्याम ने इन्वेस्ट किया तो कितना होना चाहिए? रियल मेरा गेम क्वेश्चन वही है, ये है, कितना कितना, ज्यादा हो, सही। कितना होगा? We can use rule of 72. करेक्ट, बिल्कुल हम्म। सही। मैं गायत्री जी से पूछना चाहता था कि वो थोड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। गायत्री जितना जी। हम इमेजिन कर सकते हैं नॉर्मल Uh, कोई भी, उससे ज्यादा ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। and I'm also actively in my kitchen. I need to get ready in 10 minutes. I have exams in the college, so yeah. ऑलराइट, ऑलराइट। तो आज आपका But वो I'm नहीं है, enjoying ऑफ my नहीं है? life. ऑन Thank you. सैटरडेज एंड दिस इन No, they have exams now. ओके, The दे end हैव semester एग्जाम्स। exam. Yeah, ओके, बिकॉज yeah. इन Sorry. Uh, नॉर्थ इंडिया इट विल बी लाइक Lodi here, so we uh-huh. don't have exams. Okay. So चलिए, this is like ठीक है। a recent college, so
they have to No wind. issues, no issues, no issues. I'll not Thank disturb you you. again then. All right. Thank you. कोई और बताना चाहेगा कितना पैसा हो सकता है? What do you think? Abhinav ji, हाँ housewives जी are supernatural people. They can do 3-4 things at a time. सर, you saying 3-4 thing, what I'm saying कि वो कम से कम 5-7 काम इकट्ठे कर सकती हैं। मैं तो खुद देखता हूँ लाइव, खाना भी बन रहा है, चॉपिंग भी हो रही है, दूध भी गर्म हो रहा है, चाय भी बन रही है, उधर से बच्चे को तैयार भी किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है और अपना रेडी भी हो रही है। Yes, yes. और सर 2-3 काम आपको भी दे देंगे साथ में। बिल्कुल। Right? So they are like superhumans. So that's the only reason I regards the boss and best job जो ये कर सकता है, can do anything. चलिए वापस अपने इस पे आ जाते हैं। तो राम ने इन्वेस्ट किए थे मात्र 2,000 रुपए फॉर 7 years। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट उसका था, वो था 14,000 रुपीज, जबकि श्याम का टोटल इन्वेस्टमेंट था 80,000 रुपीज। तो कोई अगर चैट में लिखना चाहेगा कि व्हाट दे थिंक कि मैक्सिमम अमाउंट दैट विल बी देयर इन देयर बैंक अकाउंट, कोई भी एक बोली लगाइए। वैसे आईपीएल की बोली बहुत ऊपर तक जा रही है, तो आज देखते हैं कि कितनी बोली लग सकती है हमारी इसमें भी। हरी जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या सोचते हैं सर, राम के पास में कितना और श्याम के पास में? श्याम के पास से शुरू करते हैं। चलिए, कितना हो सकता है, कितना पैसा? 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है इन 40 years। एनीवन? अभिषेक जी, मंजीत जी, सुमन जी। At a rate of 20% ना? राइट राइट सर। बहुत हो जाए, सर तो बहुत ज्यादा हो सर एक जाएगा। क्वेश्चन है, श्याम ने तो 26 years से स्टार्ट किया था, राइट, टिल 40 करेक्ट years, so that is करेक्ट। only for 14 years he has paid नो 2,000 सर, rupees. 40 years फ्रॉम 26 to 65। देखिए यहाँ पे Okay, लिखा हुआ स्क्रीन पे, टिल द फॉर एज ऑफ 40 years। 65। for फॉर फॉर 40 40 years, okay, okay, okay. नॉट टिल द टाइम ऑफ 40 years, फॉर 40 years। तो आप क्या सोचते हैं कि कितना हो सकता है? सर 80 का 3 लाख होगा, लगभग 3 लाख 20 जैसा कुछ होगा। गो वेरी फास्ट, 3 लाख 20% रुपए। ओके, 3 लाख रुपए कह रहे हैं। कोई बोली बढ़ाना चाहेगा सर? सर जस्ट can you confirm me when did Ram started investing, at what age? Ram started investing at the age of 18. For 7 years, he invested at 25. Yes, yes. 2,000 Okay. rupees per year only. So total investment for Ram was 14,000 rupees only. Okay. For 47 years. Sorry? No, only for 7 years he has invested. Okay. Okay. But he kept the Okay, amount for almost 47 years. Correct. 48 years. 48. Correct. Okay. Correct. For 40 years, he just left that money, let's say in bank itself, assuming that we're getting 20% return in bank, which is not possible, but still, just for example. तो क्या लगता है कितना पैसा होगा? How much money will Shyam will have? 3 लाख बोला है. Anyone want to increase that money? No? So let me give you an example. The right answer. CTG is saying 15 lakh rupees. Sir, increase the bet. 15 lakh rupees तक पहुंच गए हम. For your? No? So Ram's return will be more than 1 crore. Sorry? Ram's returns will be more than 1 crore. Okay, but we asking for Shyam right now, ma'am. Okay. तो Shyam का कितना होगा? 15 लाख तक पहुंच गए हम. You want to bet? दे दीजिए, कोई बात नहीं, पैसा नहीं काटूंगा मैं कोई, ना आपके टैक्स से कटने वाला कुछ, ना इनकम से. चलिए आपको दिखाई देता हूं कि श्याम के पास में कितना पैसा होने वाला है. फॉर दैट ओनली 2,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 1.5 CR. पहले की करोड़पति बन गए बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 2,000 रुपीज पर ईयर फॉर 40 years. पृथ्वी जी सेइंग राम 1.3, श्याम 1.4. सर श्याम के पास 1.5 करोड़ रुपया पहुंच चुका है. और मजे की बात क्या है
राम के पास में थोड़ा सा ज्यादा पैसा होने वाला है, और वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कितना है? ओह माय गॉड, इज दिस 4 CR, खाली मात्र 4 CR। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। और ये एक फायदा है कि आप अर्ली स्टार्ट करके अगर आप पैसा भूल भी जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, तब भी वो पैसा इतना ज्यादा बन सकता है कि यू विल बिकम अ फाइनेंशियल फ्री। दो चीजें यहाँ से सीखने वाली है इस स्लाइड से, कि एटलीस्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए। आप अगर लेट हो चुके तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इवन 2000 रुपीज और इवन 500 रुपीज विल मेक huge difference in their financial statements, right? अब ये कौन कौन सीखना चाहता है कि कैलकुलेशंस कैसे हुई है? बहुत सिंपल सा रूल, इसके ऊपर मैं आ रहा हूं। बहुत सिंपल सा रूल है सर, देख लीजिए, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ पिक्चर ऑफ इट, बस इट विल हेल्प यू, विच इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। जो अभी शिवानी मैम कह रही थी, रूल ऑफ 72। क्या होता है रूल ऑफ 72? 72 कितने लिखिए, साल में पैसा डबल होगा? कितने साल में पैसा डबल होगा, बिल्कुल सही। तो 72 लिखिए, उसको डिवाइड कर दिया रेट ऑफ रिटर्न से, आपके पास आ जाएंगे कितने साल में पैसा डबल होने वाला है। फॉर 3.6. एग्जाम्पल, सॉरी, In this case, 3.6 years. 3.6 years, राइट। Abhishek ji is asking which scheme gives you 20% return for 40 years. पर वो सर एक ये अलग हमने खाली होगा। एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसके बारे बट में भी अभी बात। वी कैन अर्न एज पर अवर, अपना जो सीखा था उससे अर्न कर सकते हैं, पर वो अलग चीज है, बिल्कुल सर, वो यहाँ पर नहीं अलग आएगा अभी। चीज है, बट अभी हम बहुत बेसिक्स की बात कर रहे हैं यस, अभिषेक जी, तो इसलिए हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि 20% कहाँ से मिल सकता है। अभी तो हमें यही नहीं पता है कि हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। क्या मैं 500 रुपए से भी करोड़पति बन सकता हूँ? क्या मैं 1000 रुपए डाल के भी करोड़पति बन सकता हूँ? आज तो मैं उसकी बात करने आया हूँ। सर कोई बाबूराव का स्कीम हो तो बता दीजिए, फिर लोग जानना सर ये देखिए, ये ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ सर, कोई बाबू राव वाली स्कीम नहीं है सर, चाहते। प्योर फाइनेंस के ऊपर बात करता Yes, हूँ actually, सर, कोई पॉन्जी and स्कीम। that is what people need to understand. There is no easy money and there is no big returns. जो लोग मतलब कई बार स्टॉक मार्केट में भी people invest and they think that they are going to be rich in one day or in a short span of time. It is not possible. Literally, करेक्ट, नहीं yes. नहीं आलोक जी, मैंने इनका पूरा लेसन लिया है। इफ वी स्टडी हिम जी, ना, वी कैन अर्न दिस इन स्टॉक मार्केट ओनली, विदाउट yes, एनी, हार्डली एनी रिस्क। right, तो ये right, बहुत बड़ा स्टडी है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ मंथ। right. बट सेठी जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि हम एक दिन में अमीर नहीं बन सकते एक दिन में, सर, बट वी एक कैन डू दिन इट। में कोई भी नहीं बन सकता है। अगर आप बनाना चाहो कि मैं आत्मनिर्भर भारत भी बना दूं, एक दिन में नहीं बन सकता है। कोई भी चीज करना चाहें आप, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, एक दिन में आप घर नहीं खरीद सकते हैं, बट बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, सबके लिए टाइम चाहिए। सर डॉक्टर बनने क्या एक दिन में बन सकते हैं? क्या सीए एक दिन में बन सकते हैं? Not possible. सर गलती से एस्ट्रोनॉट लॉटरी तो बन लग सकते सकती है सर, गलती से हैं। सर लॉटरी लग गलती से सकती है। लॉटरी लग सकती है, बस गलती से, राइट। बट क्या हम उससे, सर मैंने जैसे आपको सबको पता है लोगों की लॉटरियां लगती हैं, बट अगर आप देखोगे उसमें से 99% लोग वापस अपनी पहली वाली कंडीशन में आते हैं विद इन 3 years ऑफ टाइम। Exactly. विद इन बिल्कुल 3 सर। years ऑफ टाइम। जो They're not सबसे able to पहला handle that करोड़पति money. जो बना था, कौन बने करोड़पति में? विद इन 3 years ऑफ टाइम ही वॉज बैंकक्रप्ट अगेन। बैंकक्रप्ट हो गया था जो पहला कौन बने करोड़पति बना था। Habits. मैं बाहर तो जा ही नहीं रहा हूं, मैं बैंक इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अभिनव जी, जिन्होंने भी पनवेल और इधर आगे थे ना, हमारे बॉम्बे के आगे, जिसमें जगह बहुत फ्लरिश हुआ बॉम्बे और पनवेल तक गया, तब उन्होंने अपनी जगह बेची। मोस्ट ऑफ पीपल हैव गॉन बैंकरप्ट। तो पैसा रखना भी एक बहुत बड़ी होशियारी की बात है। बिल्कुल सर, पैसा आना अलग चीज होती है सर, उसको रिटेन कर पाना और उसको इंक्रीज कर पाना, वो हमारे पास, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया है वो चीज।
मुझे बताइए कौन सी स्कूलिंग में, सीए को अगर हम छोड़ दें या सीएस को छोड़ दें, तो कौन सी स्कूलिंग में हमें बताया जाता है फाइनेंशियल के बारे में? मैंने तो आज तक नहीं सुना। मैं एमबीए भी यही सोच के करके गया था कि यार वहां पे कुछ बता दिया जाएगा ऐसा कि यार कैसे पैसे को होता है, बट अगेन एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो सिखा रहे हैं कि बिजनेस करना कैसे है, जिनको आज तक खुद बिजनेस नहीं करा है उन्होंने। मैं उसके उस डिबेट पे अभी जाना नहीं चाहता हूँ, बट लेट्स कम बैक कि यहाँ पे हम बहुत बेसिक्स के ऊपर जा रहे हैं। हमारे अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो उसके ऊपर जितनी मर्जी ऊपर इमारत बन सकती है, बट हमारे बेसिक्स ही नहीं है। आपने देखा सेविंग्स की डेफिनेशन अगर 10 लोगों ने बोला तो 10 ने अलग अलग बोली है। क्या कोई एक सिंगल डेफिनेशन बोल पाया सबने? और हम मेरे ख्याल से सबके सब यहाँ पे 30+ या 40+ हैं, नॉट अ सेम डेफिनेशन। तो क्या भारत के अंदर सेविंग्स की डेफिनेशन सेम नहीं है? हर कोई लोग अलग अलग समझता है, इन्वेस्टमेंट को अलग अलग समझता है। उस पे क्लैरिटी, अगर बेस सही होगा तो ऊपर हम जितना मर्जी खड़ा कर लेंगे, अगर बेस ही नहीं है तो ऊपर सर 2-3 मंजिल के बाद में ऐसा होने लगता है। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं है सबका कैपेबिलिटी होता है कितना, हजारों में, लाखों में। बट अगर मैं आज की डेट में आपको भी बोलूं कि आपको पास में आज दे देता हूँ 100 करोड़ रुपए, बताइए कैसे करना है, तो सर अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सीईओ को भी देखा है, वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि सर मैंने आज तक इतना देखा ही नहीं है, करा ही नहीं है, तो कैसे मैनेज करूंगा। हाँ मैंने लाखों में किया है, थोड़े बहुत 5, 10, 15, 20 करोड़ तक किया, बट 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, आई रिक्वायर मोर स्किल्स फॉर दैट, राइट। तो हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, तो वापस इस पे आ जाते हैं सर। रूल ऑफ 72 विच इज 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक में 6% कोई बैंक दे रहा है तो कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा? अभिषेक जी आपसे ही पूछते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 6 इज 12 ईयर्स, तो 12 साल लगेंगे। बिल्कुल सही। 12 years. और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो कितने साल में पैसा डबल होगा? Yes. 6 Yes, sir. ईयर्स में। बिल्कुल सही। Right. और अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर कोई आपको बोले कि मैं आपका पैसा 2 साल में डबल कर रहा हूं, बाबू भाई वाला, तो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है वो आपको? 36। 36%, बिल्कुल सही। तो अगर हमें पता हुआ कि हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, तो क्या उस बेसिस पे इमोशंस को साइड पे रखते हुए हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इट विल इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ए राइट प्रोडक्ट। बस मैं ये कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर हमें रिच या सुपर रिच बनना है, वेल्दी बनना है, तो हमारे सब डिसीजन करेक्ट होने चाहिए, तभी हम उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। अगर एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, दो सही एक गलत, वी नॉट मूविंग हेड इन द सेम डायरेक्शन टू बिकम वेल्दी और सुपर रिच। हम बस वहीं पर खेल रहे हैं, एक पॉइंट आगे जाते हैं, 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, वी नॉट मूविंग कहीं पे भी, राइट। तो अब इससे हमारी कैलकुलेशंस कैसे आएंगी वो समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से कि राम ने 14,000 रुपए डाले थे 7 साल में, और उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला के 25,000 रुपीज उसका हो गया है, राइट। अच्छा मुझे बताइए राम के पास कितना टाइम था, कितने साल उसने पैसे को छोड़ा था? 47 years. 40 years. 40 years Okay. he has left the Yeah, money 40, in the 40, bank, yeah, after. Correct. राइट। तो मतलब कि 40 years, और उसे रेट हमने कितना बोला था, कितना मिल रहा है? 20%। तो जैसे शिवानी जी ने बोला था 72 डिवाइड बाई 20 इज व्हाट? 3.6 years में पैसा डबल हो रहा है, करेक्ट। और 40 years तक उसने पैसा रखा है, तो कितनी बार डबलिंग होने वाली है?
40 डिवाइड बाय 3.6 कोई करके बता सकता है फटाफट से, जिसकी मैथ्स अच्छी हो? बहुत सारे सीएज हैं यहाँ पे। सर 40 डिवाइडेड बाय 3.6 11.11. 11.11. So let's say to make the calculation easy, 11 times the money is doubling. तो 25,000 से स्टार्ट करना है और 11 टाइम उसे डबल करना है। तो शिवानी जी आप ही बताइए मुझे, 25,000 को अगर फर्स्ट टाइम डबल करते हैं तो कितना बन जाता है? 25,000 को डबल करते हैं फर्स्ट टाइम तो 50,000, राइट? 50,000 को डबल करते हैं तो कितना बन जाएगा अभिषेक जी? 1 lakh. 1 लाख, 1 lakh, 2 lakhs, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 9 टाइम पे कितना बन गया? 128, which is 1 crore and 28 lakhs. 256, राइट? और 11 टाइम करेंगे तो 512. बट राम के पास कितना पैसा था? 4 CR, करेक्ट? There's a difference between 3.6 और वो 11.11 वाला. That's a reason that comes out to be somewhere around 4%. So it will only help you to make the decision मैथमेटिकली कैलकुलेटिवली करेक्ट कि हमें किसी में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं. तो आई एम गिविंग यू 30 seconds to take a quickly note of it or a screenshot or a picture of this specific rule. Then I move further. क्योंकि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे सिंपल जो हमारे बेसिक्स है उसको क्लियर होना बहुत yes, जरूरी है. basic has to be clear. So I believe everyone has taken this. So I'll move further. कोई बता सकता है ये क्या है? किसी ने देखा हो, पढ़ा हो? Cashflow कभी? quadrant. Cash flow Yes. quadrants. Who has invented this? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Right. Who is an author of Rich Dad Poor Dad. सबसे बढ़िया book. Correct. So he divides every person into 4 different quadrants, which is E, S, P, and I. E stands for employee. S stands for self-employed. और मैं इसको बहुत अच्छी एक टर्म भी देता हूँ, which is called slave. B stands for business owner and I stands for investor. तो ये 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लोग होते हैं जो कि 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हैं. तो एम्प्लॉय से क्या समझते हैं आप लोग? ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय. ऐसा इंसान जो किसी के लिए काम कर रहा है, करेक्ट? Right. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. एक मिनट, शिवानी जी, निया मैडम बोल रही है उनको निकलना है, तो वी आर गोइंग टू पुट रिकॉर्डिंग फॉर 1 day ना? Yeah. हाँ. ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, हाँ. एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड. एम्प्लॉय कौन सा बंदा होता है? जो किसी के लिए काम करता है. वो करता क्या है? वो अपना टाइम देता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट? और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? डॉक्टर, सीए. डॉक्टर, सीए, जो वो भी टाइम देता है फॉर प्लेस ऑफ मनी. बट एम्प्लॉय का कोई बॉस होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपने खुद का बॉस होता है. अगर नहीं आप सर, नहीं अभिनव जी, सेल्फ एम्प्लॉयड इज वर्किंग फॉर एवरीबडी, ऑल हिज प्लांट इज बॉस. तभी बिल्कुल सही. तभी तो मैं कहता हूं, मैं एस को सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बोलता सर, मैं एस को स्लेव बोलता हूं. कि जैसे आपने बोला ही इज वर्किंग फॉर एवरीवन, बस उसने अपना बॉस चेंज किया है. यहाँ पे वो हर किसी के लिए काम कर रहा है. यहाँ पे हर कोई उसे बोल रहा होता है. एम्प्लॉय में तो खाली उसका बॉस बोलता है. यहाँ पे उसका एम्प्लॉय बोल रहा होता है, सुना रहा होता है, उसकी फैमिली सुना रही होती है क्योंकि टाइम होता ही नहीं है उसके पास में. उसके कस्टमर सुना रहे होते हैं उसको, राइट? और सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर और कौन कौन आता है? जितने प्रोफेशनल्स हैं वो तो आते ही आते हैं. प्लस
द स्मॉल शॉप ओनर्स, ठीक है, ऐसे शॉप ओनर जिनके जिनके अपनी छोटी मोटी दुकान है, उनको भी मैं बिजनेस ओनर्स नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बिजनेस ओनर कौन होता है जिसके पास एटलीस्ट 100 Big business लोग owners. होते हैं, यस एटलीस्ट 100 Even हो, small business owners or retailers are under self-employed. करेक्ट, क्योंकि अगर वो जिस दिन दुकान का शटर नहीं खोलेंगे, क्या उस दिन पैसे आने वाले? नहीं। No. जिस दिन दुकान का शटर बंद है उस दिन पैसा नहीं आने वाला, जिस दिन दुकान का शटर खोलेगा उसी दिन पैसा आएगा। तो दे आर नॉट बिजनेस ओनर, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और व्हाट आई से स्लेव्स फॉर देमसेल्फ, फॉर सोसाइटी, राइट। और बिजनेस ओनर कौन है? जिसके पास एटलीस्ट एक सिस्टम है, चाहे वो छुट्टियों पे भी चला जाए, महीना 2 महीने 6 महीने नहीं भी जाता है ऑफिस, तब भी उसके लिए पैसा आता है, बिकॉज he has system, he has 100 people, 200, 500 people who are working for him. And Abhinav ji, I will क्लास tell you वाला one thing, बंदे even इस बी के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ जी हरी जी। even the coach है ना, जो कोचिंग करते हैं, जैसे आलोक शेट्टी जी है, दे आर ओनर, शिवानी जी, दे आर बिजनेस ओनर, बिकॉज वो अपने मर्जी से करते हैं। सर अगर They वो can go 100 anywhere, की they can work. कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो खुद ना करें, सेठी जी बुरा मत मानिएगा, अगर वो खुद ना करें और फिर भी पैसा आए, तब तो बिजनेस ओनर मैं बोलता हूँ। बट अगर Yes, you are खुद right, you are ही right, you are लेना right. पड़ेगा Sorry, sorry. और तब पैसा आएगा, तो ही कम इनटू द सेल्फ एम्प्लॉयड, Absolutely. Yes. राइट। तो ये सिनेरियो Yes, है। yes. सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा मेरे को। कौन बोल रहे हैं? एक मिनट होल्ड कीजिए। किसने क्वेश्चन पूछा? सॉरी। सुमन जी। Big business owners are like Amazon, Flipkart, नहीं and नहीं 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 these नहीं नहीं, big वो तो giants. बहुत ऊपर चले गए हम। मैं हाँ छोटा जी। उसमें एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सुमन जी, सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा है या वो जो छोटा बिजनेसमैन है कि अगर वो ऑफिस ना जाए 3 महीने 6 महीने, तो क्या उसका बिजनेस उसको पैसे कमा के देगा? अगर आंसर आता है नो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गया। और अगर आंसर आता है यस, अगर वो साल भर भी ना जाए, 2 साल भी ना जाए, तो दैट्स बिकम अ बिजनेस ओनर, क्योंकि उसके Then, पास Abhinav, more सिस्टम बना important is दिया। not 100 people. More important not is 100 people, but a system. If the system यस, इज take अ it done. सिस्टम। मैं उसी पे जैसे आ रहा आलोक हूँ, शेट्टी जी सिस्टम। करे अपना एक मस्त वीडियो बना दे और वो सिस्टम भी Like a भेजते रहे automated system. ऑटोमेटिक। मेरा कहने का मतलब वही था, क्योंकि लोग नंबर्स से ज्यादा आसानी से समझते हैं, तो इसलिए मैंने खाली नंबर्स डाले हैं। ओके, मेन चीज सिस्टम ही है। अगर वो नहीं जाते हुए भी पैसा कमा पा रहे हैं, तो दैट्स देन ही मूव टू इनटू अ बिजनेस ओनर प्रोफाइल। बट अगर वो खुद ही जाके सेशन ले रहे हैं और तभी आ रहा है, और अगर वो लेट्स से कि उनको कोरोना हो गया, और सॉरी सिटी जी होना नहीं चाहिए, टचवुड, बट अगर किसी बंदे को ऐसा हो जाए और वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ हेल्थ और एनीथिंग एल्स, और बिकॉज ही और शी इज बीन ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, तो क्या उसका बिजनेस वो पैसा बना के नहीं दे पा रहा, तो देन ही कम्स इनटू द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। ओके आलोक जी। और इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसा बनाता है। और मजे की बात क्या है, 95% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कम अंडर दीज टू कैटेगरीज ऑफ ENS। बहुत मुश्किल होता है इस क्वाड्रेंट से उठ के पहले तो यहां पे आना एस कैटेगरी में, उसके बाद में बी में जाना या आई में जाना, क्योंकि इन सब क्वाड्रेंट्स की अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो अपने अपने टर्म्स यूज करते हैं, राइट। जैसे एम्प्लॉय से अगर आप पूछोगे, तो वो अगर आप उसे बोलोगे कि यार तू सेल्फ एम्प्लॉयड बन जा, तो उसके अंदर फियर होता है, तो वो बहुत बात करता है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर ये हो गया तो जैसे ही कोई इंसान ये बोलना शुरू कर दे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कहीं पे काम कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी के अंदर फियर देखता है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या बात करेगा? वो बात करेगा टाइम ही नहीं है यार, काम है बट टाइम नहीं है, काम है बट टाइम नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा ही इज ए स्मॉल बिजनेस ओनर, और ऐसा बंदा है जो काम तो कर रहा है बट बिजनेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि जो बिजनेस क्रिएट कर देगा उसके पास टाइम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अंबानी से, अडानी से, आपको क्या लगता है उनके पास टाइम नहीं है? बहुत टाइम है।
इतने सारे बिजनेसेस रन करने के बाद भी दे हैव द टाइम फॉर देमसेल्व्स। वो 5-5 घंटे अपने ऊपर निकालते हैं सर, सुबह भी और शाम को भी, टोटल मिला के, फॉर देयर Yes, ओन सेल्फ, yes, sir. राइट। Yes, और sir. कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं देख लीजिए। तो बिजनेस ओनर के पास टाइम भी होता है। व्हाई? बिकॉज ई टाइप ऑफ पीपल, एम्प्लॉय आर वर्किंग फॉर देम, वो जनरेटिंग मनी फॉर हिम और हर, राइट। तो मैं तो जब भी बात करता हूं इन दो क्वाड्रेंट से, ई और एस वालों से, तो मैं तो बहुत नॉर्मल टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर देता हूँ, विच इज ऑफ व्हाट, वेदर, पॉलिटिक्स, और क्या चल रहा है आजकल इंडिया में। दैट्स द टॉपिक यू हैव टू स्पीक टू देम, राइट। बट आप जब बिजनेस ओनर से बात करते हो तो वो क्या देखता है? वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, हर चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि यार मेरा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। दैट्स द Sir, बिजनेस how? ओनर एक्चुअली। सॉरी सर हाउ, जैसे आपने बोला ना कि मैं दो से वेदर का और उसका, तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का, सपोज एज ए सीए कोई जॉब नहीं है मेरे पास, आई अटेंड बहुत सारे जॉब्स के लिए भी मैं गई आई, और प्रैक्टिस में भी कुछ भी नहीं है, तो उस जगह मैं किस कैटेगरी में आऊंगी? मैम, आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आएंगी, क्योंकि आप सीए हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई, और किसी के लिए काम कर रही हैं तो एम्प्लॉय हो गई। फॉर एग्जांपल, आप बिग 4 के लिए काम कर रही हैं तो आप एम्प्लॉय हो गई, और आपने अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहां पे आपने लेट्स सर से एक कि सीए दूसरे सीए को कुछ नहीं देता प्रैक्टिकल लाइफ में, भले सगा भाई क्यों ना हो, मेरी बहन को काम नहीं आता है। हाँ जो फॉर्म बिल्कुल, में मैं बैठी हूँ, 25-27 साल से मैं बैठी हूँ, तो हाँ महीना मिलता है एज एक तो नोशनल मनी, एज ए उनके पास ऑप्शंस नहीं है, देना पड़ता है, एज ए लैंडिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। बट एज ए सीए ना मैंने कोई साइन किया है ना कोई वैसा मैंने अचीवमेंट, आज 50 साल की उम्र में भी। तो लगता है यदि आप सच पूछोगे तो आई विल नॉट सजेस्ट सीए कोर्स फॉर ए गर्ल स्टूडेंट एटलीस्ट। चलिए मैम, आपकी ही केस स्टडी को लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में जाना है, क्योंकि अभी तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में थी, तो आपको जो आपकी थिंकिंग है वो कैसे चेंज करने की मैं दिखा रहा हूं। आपको हर अपॉर्चुनिटी में आपको क्या नजर आना चाहिए? बिजनेस। क्योंकि बिजनेस ओनर, ये राइट, बिजनेस ओनर आर, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं बिजनेस ओनर आज तक जितने भी अच्छे अच्छे हुए हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी क्वालिफाइड पीपल, दे आर वेरी नॉर्मल क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड पीपल हु आर मैनेजिंग व्हाट, हाईली क्वालिफाइड पीपल from the Yes, sir. category of I E know and many S. businessmen. I know. Thus we fail, but they are as a Alaknanda. I can illustrate the name of the person. Yesterday he told me I donated 1 crore rupees for Ayodhya. मैम मुझे बताइए, दूर तो कहीं जाता ही नहीं, मैं तो छोटा सा एग्जांपल यहीं पे लेके चलता हूँ। धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे? Don't know. Petrol pump job I listened only. राइट, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन भी उनका पूरा नहीं था, करेक्ट। तो मोस्टली आपको जो भी हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं, आप क्लास में भी अगर देखेंगे ना, मैं स्कूल की बात भी अगर करूं, तो जो हाईली अच्छी रैंक वाले होते हैं, दे फॉलो इनटू दीज टू कैटेगरीज ऑफ ई एन एस। और जो सी डी ग्रेड वाले होते हैं, यू विल फाइंड दोज पीपल हेयर इन दीज टू कैटेगरीज। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, डू नॉट माइंड, मैं आई एम नॉट डिग्रेडिंग द स्टडीज, बट दैट्स द फैक्ट एक्चुअली। बिजनेस ओनर कभी भी आप सोचें कि मैंने सीए कर लिया है, मैंने सीएफए लेवल 3 कर लिया है फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम यूएस, और मैं अच्छा बिजनेस ओनर बन जाऊं, डज नॉट गारंटी दैट। क्यों? मैंने पहले ही एग्जांपल आपको दिया है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में सिखाया ही नहीं जाता कि बिजनेस ओनर कैसे बनना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड तक बनाने की सोचते हैं, और एमबीएस में तो कोई है ही नहीं जो पढ़ा रहा है इंडिया के अंदर जिसने कभी अपना बिजनेस करके भी देखा है, राइट। तो आपकी अगर केस स्टडी लें, मैम भूल जाइए आपने सीए किया हुआ है, ठीक है, आप अपना घर ये चला कोई रही है काम मैम। नहीं आता मेरे लाइफ में सर, मुझे तो ऐसा मैम लगता है ना, आई वही मैं बता रहा मेक अ हूं, मिस्टेक इन माय लाइफ बाय डूइंग सीए। अभी आपको फायदा करवा के देते हैं मैम इसी से। आप अपना घर चला रही है मैम,
You married? नहीं, कुछ भी नहीं चल, nothing. I am just enjoying a life of beggar only, nothing else. चलिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है मैम, क्यों आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. The best businesses come out at the time of the worst condition of your thing. आपको पता है ये चीज? The best businesses, आज तक की हिस्ट्री में खोल के देख लीजिए, जो भी बेस्ट बिजनेसेस हुए हैं, कब हुए हैं? ऐसी सिनेरियो में जहां पे मार्केट गिरा हुआ था, एकदम रिसेशन चल रहा था, या ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उस टाइम पे बेस्ट बिजनेसेस खड़े होते हैं मैम, सबसे अच्छे बिजनेसेस और लंबे चलने वाले. पता नहीं सर, अभी तो राम भरोसा होटल चल रहा है, बस राम भरोसा. चलिए, कोई बात नहीं, आपका एग्जांपल लेके आगे कोशिश करने की कोशिश करता हूं मैं, कि लेट से आपके पास आज की डेट में कुछ नहीं है, यू आर एट फ्लैट जीरो लेवल, ठीक है. आज के बाद आप किसी से भी मिलते हैं, इफ यू हायर लेट से इवन वन CA which is more smarter than you, more knowledgeable than you, right, has more experience than you, ठीक है, अगर आप उसे हायर कर लेती हैं, ठीक है, और खाली आप उन लोगों से मिलती हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं या कोई भी है, वो अगर आपके लिए पैसा कमा के देगा, तो क्या आपको काम करने का जरूरत है? मुझे बताइए. नहीं, आपको मैनेज करना है उसे बस. तो आपको करना क्या है? आपको हर किसी जिसमें भी आप घूम जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो, आपको खाली अपना, आपको ढूंढना है कि मुझे इसमें से क्लाइंट कैसे मिल सकता है. क्या आपने कभी ऐसे देखा है नजरिए से कि मुझे इसमें से क्लाइंट कहां से मिल सकता है? अभिनव जी, एक मिनट, अभिनव जी, अपना 8:30 बज गया है, तो जरा जल्दी करो ना अभी प्लीज. ठीक है, कोई बात नहीं. इसलिए और कुछ नहीं. हाँ, ठीक है, ठीक है, श्योर. तो ये इसके लिए हम 1-to-1 मिल सकते हैं मैम. मेरा नंबर ले लीजिएगा हरी जी से, आई कैन एक्सप्लेन यू ऑन दिस. सो लेट्स मूव फर्दर. तो और इन्वेस्टर क्या होता है? जो पैसे से पैसा बनाता है. तो बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इसमें बात करेंगे. सर आज मैं ज्यादा नहीं लूंगा, यहीं पे ज्यादा आगे नहीं जाने वाला हूँ, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, तो ज्यादा उस पर नहीं है, मैं सही टाइम पे खत्म कर दूंगा इसे. ओके, तो हम लोग आज मैं आपको इस कैटेगरी में लेके आना चाहता हूँ, इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में. मुझे बता सकता कौन कौन इन्वेस्टर है आज की डेट में, या इस कैटेगरी में क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बोला 95% ऑफ पीपल आर हेयर इन दिस, और 5% यहां पर हैं. और मजे की बात क्या है, ये 5% जो हैं इस होल्डिंग 95% ऑफ द एंटायर वेल्थ ऑफ वर्ल्ड, और इन लोगों के पास में जो 95% है, मात्र 5% वेल्थ है. तो जब हमें पता है कि पैसा यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, टाइम फ्रीडम यहाँ पर है, इंजॉयमेंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हैं? रीजन बताइए. एक रीजन मुझे मिल चुका है अभी, जो मैम ने बताया. बाकी क्या रीजन है? कोई बोल सकता है? कैन यू रिपीट सर? Why we're not in these two quadrants? क्योंकि यहीं पे सब कुछ है, पैसा भी यहीं पे है, इंजॉयमेंट भी यहीं पे है, टाइम भी यहीं पे है, फिर भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस या हम में से भी कोई भी यहाँ पे क्यों नहीं है? पेशेंस ना अवेयरनेस है, ना एजुकेशन है. एजुकेशन, बिजनेस करने को डर लगता है आदमी को. सर क्या बोला बिजनेस जी? लगता है, फाउंडेशन ऑफ कैश रिस्क नहीं लेते हैं, सर अनअवेयरनेस. सर एक बात मैं और बता दूं आपको. सर जो लॉर्ड मैकेले था, ही जस्ट इंजर्ड आवर होल एजुकेशन सिस्टम as per the my thought and knowledge and study whatever made why we are suffering such a life. The whole education is intentionally corrupted by the Lord Macaulay. In 1887, you just read the number of books, you got the name Lord Macaulay, and we are the all sufferer. As a education wise, we spoiled our personal life and professional life. For money, we spent 50 years and still we don't have anything. बिल्कुल 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 मैम, बट वो हो चुका है, दैट्स अ पास्ट. हाउ वी कैन चेंज इट? दैट्स द क्वेश्चन. यस सर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आंसर. और वो आपके आंसर्स में ही मिलने वाला है. आपने बोला रिस्क, बहुतों ने बोला एजुकेशन, राइट, बट किसी ने एक मेन चीज नहीं बोली कि मैं इन्वेस्टर नहीं, क्यों नहीं हूं. आप क्यों नहीं है मैम इन्वेस्टर? एक चीज और बताइए, मेजर चीज क्या है? maybe I made a mistake. trust others. I don't trust others. I don't संदीप trust जी? others.
करेक्ट, बट So एक चीज कोई नहीं bringing बोल रहा है। bringing financial awareness since the initial ages and introducing it in our education system will definitely help. करेक्ट, Because when we are youngsters, like 15, 20 years of age, and if this age group is being taught all these concepts from the very beginning years, definitely this will help. Sir, kindly permit me. This is Murali Krishna. I'm working for Bank of Baroda as a chief manager. I'm a chartered accountant. I think recently Government of India is introduced a national policy and financial literacy for 2020 to 2025. As per the policy, they are imbibing all the 6th class or 7th class onwards to intermediate. They're also taught. The government is already introduced. But I'm sorry to say that somebody is maybe a frustration, but we need to success in one stage and need to be converted. That means a caterpillar has to be converted into butterfly. That means you need to move from one coordinate to another coordinate. That's Correct. Everybody has to put their own kind of sweat, blood and sweat. Correct. I'm sorry. But This is my no, bilkul, you're absolutely right, sir. That's the reason previously in my courses, the youngest person was 13 years old. Now the youngest is 9-year-old person. Not person, a child. सोचिए 9 साल का बच्चा जब फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहा है, कौन सी क्लास में हो सकता है, बता सकते हैं? Fourth grade. He's into 5th grade. Yeah, right now. 4 and 5 के बीच में ही होता है, ठीक है? He's into 5th grade. And the time frame that he has, सोचिए कंपाउंडिंग का इफेक्ट सोचिए. 9 साल का बच्चा 40 साल में अगर 2000 रुपए डाल के कितना पैसा बन गया था, उसके पास कितना टाइम है? 50 साल, 55 years. सोचिए कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट आने वाला है. चलिए आगे चलते हैं. So why we are not into this category? Because mainly of this 3 reasons you have given me. Knowledge. No sir, Abhinav ji, lack of knowledge. पैसा lack of knowledge. They don't have the patience to wait. Right. क्योंकि बहुत People लोग मुझे want बोलते quick money, Ponzi schemes, Babu Bhai schemes. Right. And I'm telling you, They want quick money. And Shivani madam, lack of knowledge is. Shivani ma'am, Yes, sir. this is very basic for you CA people, but I'm telling you, when I did with him, even being a businessman, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे. And we can really make money with a lot. मतलब एकदम छोटे-छोटे पैसा बचा के हम कर सकते हैं. मतलब 2000 रुपए तो एक गरीब आदमी के पास भी होता है, एक छोटा एम्प्लॉय के पास भी होता है बचाने के लिए 500-1000 रुपया. Sir, इसलिए मैं People don't want to wait for it to grow. They easily वही get trapped. तकलीफ है ना. ये है there's a प्लान फॉर generation of रिटायरमेंट, quick तो आपको वेट करना ही है gratification ना. actually. Yes, Quick yes, gratification because चाहिए इस वाली जनरेशन को. वो चाहते हैं सब कुछ हाँ. आज ही मिल जाए, एकदम आज मिल जाए, ताजा ताजा सब फास्ट आज फूड, ही करा, फास्ट आज फूड. मिल जाए. फास्ट फूड डाला, कढ़ाई में डाला, निकाल के खा लिया. नहीं होता सर. पेड़ को बीज डालोगे, फ्रूट आने में टाइम लगेगा ही लगेगा. जितना मर्जी आप कर लीजिए, इंजेक्शन लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, टाइम टेकन प्रोसेस इज देयर. तो अगर आपको वेल्थ बनाना है तो इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस. क्विक स्कीम नहीं है कि आपने जादू की झड़ी निकाली, आब्राकाडाब्रा बोला एंड द रैबिट विल कम आउट ऑफ द हैट. नो, इट विल नॉट. Abhinav ji, sorry to interrupt you. We would like to conclude the session because we generally carry till 8 a.m. and for today we have kept it for 8:30. So Correct. Okay. as the time is So short, I will I'll request you to conclude. Sure. 5 minutes. I'll conclude this. Yeah. Okay. All right. I will not go further out of this. So my main focus will be, guys, you have to start thinking, because everything starts from this. अगर किसी ने ताजमहल बनाया है तो क्या ताजमहल सीधा बन गया? नहीं, पहले दिमाग में बना है वो. तो अगर आपको फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, रिच या सुपर रिच बनना है, पहला
आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हम सोचते हैं हमें पता है, और मजे की बात क्या है, जिन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज ली होती है उनको तो पता ही है, बट बाकी जो जनता है 80-85% घबराती है। I've seen lot of housewives, they said कि बॉस हम तो फाइनेंस देखते ही नहीं है, इट्स अ वर्क ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली और मेल ऑफ द फैमिली। क्यों? बिकॉज दोज थिंग्स द थॉट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि पैसे का काम तो वो देखेंगे। क्यों देखेंगे? बच्चे को भी पता होना चाहिए। Agree, sir. Agree. You are 100% right at this point. राइट अगर बच्चे को उसको पता होना चाहिए कि वो उसे अपनी पॉकेट मनी कैसे यूटिलाइज करनी है, क्योंकि आज अगर वो पॉकेट मनी यूटिलाइज करना सीखेगा तभी वो आगे जाके अपने घर को, अपने फाइनेंसेस को यूटिलाइज कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा प्रॉपर वे में। अगर वो वही नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे कर पाएगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अचानक पैसा आ भी जाएगा आपके पास में तो उसे मैनेज करने की स्किल ही नहीं है हमारे पास में, हमें You are पता right, ही नहीं sir. है यूज करना है। राइट तो हमें अपने 100% right. थॉट में चेंज लाना है। वी हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि अभिनव पैसे से पैसा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार कैसी बात कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है। जैसे अभी मैम बोल रही थी कि मैंने सीए कर रखा है। मैम अगर मैंने सीए कर रखा होता तो सर ये एक भी ऑडियंस जनरेट नहीं हो, आप क्रॉस चेक कर लीजिए ICICI मैं झूठ बोल रही हूँ तो। इवन सीए लोग मेरा काम किए का 4 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हैं, और वो लोग कमेटी डिसीजन पास करती है ओनली अप्रूव्ड ऑनलाइन सेशन। 2 डिग्री टेम्परेचर में काम करने के बाद एरर 500, दे आर नॉट पेइंग माई चलिए पैसा। कोई नहीं, थोड़ा सा आराम से बैठ के आपसे मशीन बात इज करेंगे मोर और आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे देन कि ह्यूमन कैसे कर बीइंग फॉर सकते हो। ICI। तो मैं कह रहा हूँ, आप Woman अभी ma'am, भी वो please, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले please फ्रेम keep में your जा रही हैं। personal things. हाँ, Yeah, सेल्फ please, एम्प्लॉयड वाले उसमें है। yeah. वी हैव टू इट्स नॉट थिंक लाइक, पर्सनल थिंग, इट्स एज ए सीए वो लोग कोई भी काम करते हैं ना, विदाउट गिविंग Right. अपॉर्चुनिटी दे डिसग्रंटलशिप फ्रॉम एग्जामिनरशिप। ओके कोई बात नहीं The मैम, machine is more विल important टॉक। for ICI, not human beings. Ma'am, there are other people also attending the session. Please keep it separately. Sure, Suman ji, we'll talk about that in one-to-one session. All right, so thank you. तो यही मैं कह रहा था कि आपको ये to start thinking as a business owner or an investor. Investor हमेशा opportunity देखता है कि यार मेरा पैसा कैसे बन रहा है। So I'll not take much of time, only 1 more minute. I'm going to conclude this. So you have to change your thoughts. If you want to move from these 2 quadrants to these 2 quadrants, you have to change your thoughts, because thoughts change to feelings, feeling change takes you to action, and action takes you to results. तो अगर आपको अपना फ्रूट को चेंज करना है तो एक्चुअल में फ्रूट चेंज नहीं होंगे, आपको रूट पे वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर फ्रूट। राइट तो अगर हमने रूट पे काम कर लिया, अपने थॉट्स पे काम कर लिया, विच इवेंचुअली टेक यू टू व्हाट? फीलिंग्स विल टेक यू टू एक्शंस, एंड एक्शन विल टेक यू टू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो हमें उसके ऊपर काम करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम, नॉट द फिजिकल गेम। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से भी कमा सकते हो, किसी भी छोटी चीज से कमा सकते हो, किसी बड़ी चीज से कमा सकते हो, बट स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए बिजनेस ओनर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा बनाता है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि पैसा यार जब ज्यादा होगा तभी तो इन्वेस्टर बन पाऊंगा। आप अगर एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर भी खरीदते हो, 1 रुपए का शेयर भी खरीदते हो, यू बिकम एन इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी, यू बिकम अ ओनर ऑफ ए कंपनी। लोग मुझे कहते हैं मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, अब इसे बेचूं कब? नहीं, आपने एक कंपनी खरीद ली है, यू बिकम द शेयर होल्डर। आप अपना बिजनेस बेचते हैं कभी क्या? मुझे बताइए, घर बेचते हैं कभी क्या? तो शेयर खरीदते बेचने की बात क्यों आती है कभी भी? तो वैसे नहीं करना। एज ए ओनर, यस, if you buy an asset, make it as an asset. जिसको भी नंबर चाहिए बिजनेस जी का, मुझे बेच ये के शेयर पैसा को नहीं फोन कमाता करें। है, प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाता है। कभी बिजनेस ओनर अपने कहते हैं बिजनेस को बेच के पैसा नहीं कमाता, प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाता है। तो हमें बिजनेस ओनर की तरह सोचना है, इन्वेस्टर की तरह सोचना है कि मेरा ROI कहां से आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकता हूं मैं, वैसे सोचना शुरू करना है। ये 2 क्वाड्रेंट इज अ ट्रैप, डू नॉट फॉल अंडर दिस, डू नॉट फॉल अंडर दिस। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं यार हाई पेइंग जॉब मिल गया है मुझे,
सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया हूं मैं, नहीं है कोई फायदा, यहाँ पे ही है सब कुछ। स्टार्ट थिंकिंग, थॉट्स, दिमाग चेंज होगा तभी चेंज होगा कुछ भी, ठीक है। I might take it further some other day, but for today that's what it is. Start from very basics. अपने बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए। नॉर्मल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े बड़े पे जाइए। इवन इफ यू सेव 500 रुपीज, इन्वेस्ट दैट 500 रुपीज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विल गिव यू अ ह्यूज रिटर्न्स। जैसे मैंने बोला 2000 रुपये मात्र Compounding. साल का भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए बन जाता है विद इन 40 ईयर्स। मुझे बताइए किस कोई बंदे के आज के पास में पेंशन नहीं है, अगर आपको 1.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए पेंशन के टाइम पे मिलता है तो इट विल गिव यू अ बेटर लाइफ। कैसे हो सकती है? आई माइट टेक इट सम अदर सेशन वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे कि इसको और फर्दर हम कैसे ले आ सकते हैं। नहीं बट अभिनव जी, ये वो जैसे मैंने आपसे लिया ना पूरा कोर्स, वैसे ही करना पड़ेगा। इफ यू दे वांट टू अर्न 20 and 25%, दैट इज द ओनली वे आउट। बिल्कुल सर कर सकते हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ, स्टार्ट, अगर जब तक हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम डरेंगे किसी चीज से, अगर हमें डर लगता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ठोक दूंगा, तो आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं हमेशा मेरे कहते हैं वो होने वाले हैं, किसी से गाड़ी लगने वाली है, तो आपकी 100% लग जाएगी। कभी एग्जाम्पल करके देख लीजिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपने सोचा है कि यार मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, तो आपको कभी भी पार्किंग नहीं मिलने वाली है जहाँ पे आप जा रहे हैं। और घर से सोच के चलिए मुझे आराम से पार्किंग मिलेगी एंड एंजॉय माई मूवी, तो आपको वो मूवी आराम से देखने मिलेगी, पार्किंग 100% मिलने वाली है। तो थॉट्स का गेम है सारा। तो वैसे ही अगर आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे बनना है, यू विल मूव टू दैट, द होल यूनिवर्स विल गिव यू दैट थिंग। एंड आई कंक्लूड विद दिस, yes, You are right. so I conclude with this saying कि प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग, नॉट सेविंग। पैसा जेब में मत रखिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, चाहे 500 रुपए ही कर रहे हो, बिकॉज स्मॉल स्टेप विल टेक यू टू दैट लेडर वेयर यू वांट टू रीच। And anyone want Abhinav's number? Saving, how you can Contact able me or to Shivani ma'am. Sorry, without sir? first you generate saving, how you can able to invest? Sir, that's what I'm saying. Because a lot of people, I believe you are not there in the initial part of the session where I said that most of the people does not understand savings. We have different concept for savings, right? So saving should be that money that you put aside, but out of that saving, it has to be investment that make you rich, not the saving, because savings will be putting the money into the cupboard or into your wallet. That will only depreciate year on year basis. It will not increase. Correct. So, but Yes, if you put that money into any financial instrument, only then it's going to increase. And that financial instrument has to beat the inflation, which is more than 6%. That's what we have learned in this. So thumb rule is more than 6%. Then we do that investment. Otherwise, we say thank you. We'll not do that and wait for the right opportunity. Okay. And we start investing small amount, at least small amount. That's what I'm saying. Yes. To come up to that independence of financial Aatmanirbhar Bharat. I might take it further someday again. I request Riji and Shivani ji and Aloji to give me some other session. So I'll take it further from this too. Yes. And you guys are very lovely audience. Thank you very much. I believe you might have There was taken good something out of There it. was good interest today. Yes. Okay. So thank you very much for the session and happy Lodi to all of you. And happy Makar Sankranti in advance. Thank you, Shivani ji. You can take it from here. Thank you, Abhinav ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Abhinav ji, and thank you everyone for making Cashflow Wealth a successful learning platform. Next week, we'll be having Siddharth Shah, who will be talking on the principles of Think and Grow Rich. He is a certified Think and Grow Rich trainer. Yeah. And yeah, we'll be having him next Saturday. See you next Saturday. Thank you, everyone. I've just shared my number on the screen. If anyone like to take in one-to-one thing, you can share. You can take in my number from Shivanji or Hariji. Yeah, I'll share. All Thank right. you, Abhinav. Thank you.